Dear students, Vande Matram. Today I am going to teach you about political parties, one of the very important chapter of political science standard 10 CBSE exams. And I hope that you will understand it topic wise, or you can say the question wise. And you know that so many questions are asked. So here I am going to discuss about whole chapter, but I will concentrate it क्वेश्चन वाइज. तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा चैप्टर ही मैं आज के वीडियो में समझाने जा रहा हूं आपको, लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन के आधार पे समझाऊंगा जिससे आपको ये आसान लगे समझने में. और सीबीएसई में ये जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे इसी क्वेश्चंस के दायरे में आएंगे. तो आई होप दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट बोथ द मीडियम स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो मैं दोनों माध्यम में इसे समझाऊंगा. तो आप जो भी हिंदी माध्यम के हैं या अंग्रेजी माध्यम के हैं वो सभी बच्चे इसको समझ सकेंगे और इसका लाभ उठाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइड. सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी? ओके, तो पॉलिटिकल पार्टी जनरली वी नो दैट इन हिंदी व्हाट वी यूज्ड टू से राजनीतिक दल, है ना. इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल. अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and hold power in the government. Generally we know this definition. यानी पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक राजनीतिक दल है जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ग्रुप ऑफ पीपल है ना, जो इलेक्शन लड़ते हैं और जिनकी जीत होती है, मेजोरिटी में जो आते हैं वो सरकार बनाते हैं, और जिनकी सीट्स कम होती है वो अपोजिशन पार्टी में बैठते हैं ना, मतलब विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं. कि ऑल दोज पॉलिटिकल पार्टीज विच आर गेटिंग मेजोरिटी सीट्स, तो दे आर सिटिंग इन एज अ रूलिंग पार्टी, एंड दोज हु आर यू नो दैट नॉट गेटिंग मेजोरिटी सीट्स, तो दे आर जस्ट परफॉर्मिंग देयर रोल एज opposition party. And you know that there are so many functions which we are going to discuss. So this is the meaning of political parties. They are making policies and programs for the nation, for the society, as view to promote the collective good. तो जनरली इनका उद्देश्य होता है कि नीतियां बनाए, कार्यक्रम बनाए देश की जनता के लिए, समाज के लिए. और जब वो सरकार में होते हैं और जब विरोधी दल में होते हैं तब भी वो सामाजिक कार्य करके जनता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं. जनरली दे यूज्ड टू ट्राई टू इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट मीन्स people so that they could get vote in the next election. So all the political parties, generally those who are getting the chance to form the government and those who are sitting in opposition, both are performing their role important. Is that clear? Now I hope that you have understood the meaning of political parties. Now we'll discuss about three components of political parties. यानी political parties के तीन component हैं, है ना. A political party has three components, as I told you. First, we find the leaders. Second, we find the active members. And third, we find the followers. So you will find that the leaders, their work as a leader is to contest election. And if they win, so they perform an administrative role or jobs they used to do as the leaders. Second, we find the active members. The active members, you know that, attend party meetings and are close to the party leaders, and they can be called the assistant of the leaders. So they are active members. They are attending our party meetings also, and all those works you will find which are done by the leaders. So they are managing it. Suppose that if any there where they have to go for election campaign, so these active members are along with them. Suppose that if any program is organized in any city or town, so these active members used to remain there and they used to take care of this leaders program. And lastly, you will find third, the followers. The followers, you know that, are the dedicated workers of the party. They are just, you know that, always move around with the active members, around the leaders, and they work under the able guidance of the active members. Means whatever active members used to say, so they are following, and they always used to support their party. Is it clear? तो तीन तरह का हम लोग देखते हैं. पहला जो हम लोग देखते हैं वो लीडर्स, जो नेता कहते हैं हम लोग.
वो टॉप लीडर्स होते हैं, हमारे देश के जितने भी टॉप लीडर्स हैं तो वो सब उसी दायरे में आते हैं। दूसरा जो स्तर होता है 3 स्तर का होता है, पहला तो टॉप लीडर्स हो गए, दूसरा है एक्टिव मेंबर्स। जो टॉप लीडर्स के मीटिंग्स वगैरह जब भी और पार्टी का होता है तो वो अटेंड करते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जा करके पार्टी के पॉलिसीज प्रोग्राम्स को समझते हैं, उसके अनुसार वो क्षेत्र में जा करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा जो होता है वो फॉलोअर्स होता है। जनरली यू नो दैट दे आर डेडिकेटेड वोटर्स, ये एकदम पार्टी के कट्टर समर्थक होते हैं। पार्टी के नेता आएंगे या एक्टिव मेंबर जहां जाएंगे वो पार्टी का स्लोगन बोलेंगे, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, और जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो उनका व्यवस्था करने में इन लोगों का हाथ होता है। तो दिस वे वी फाइंड दीज 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैं क्वेश्चन वाइज समझाता हूं आपको, जो आपको समझ में आएगा, और बोर्ड में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप इस आधार पर तैयारी करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, एंड होप दैट यू विल get good marks, full marks. Is it clear? And next you will find it. Okay, I'm going to discuss about functions or role or characteristics of political parties. तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 तरह से पूछे जाते हैं। एक तो कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरा जो पूछा जाता है वो है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और तीसरा जो पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसे आप देखिएगा एक्सरसाइज में 2 अलग क्वेश्चन दिए, लेकिन आंसर जो होता है इसका सेम होता है ना। तो इसलिए कहीं इसमें घबराने की बात नहीं है, आप लिख सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं डिस्कस करता हूं फंक्शंस। तो फर्स्ट फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज व्हाट? टू कंटेस्ट इलेक्शन, एंड यू विल फाइंड दैट फॉरमोस्ट यू कैन फाइंड दैट द main function of the political party is to contest. Unless they will not contest the election, how they will win, how they will form the government, how they will sit in opposition. So that's why they used to contest election. And you will find that different countries the contest elections in different ways. यानी कई देश ऐसे होते हैं कि जहां पर राजनीतिक दल का जो चुनाव पद्धति है वो मतलब अलग है। If you will take an example of USA, तो there you will find members and supporters of a party choose its candidate. तो वहां अमेरिका में क्या है कि वो पार्टी के अंदर ही मेंबर्स वगैरह पहले चुन लेते हैं कि कौन लीडर होगा, है ना। और वो लीडर फिर एक पार्टी का, और फिर दूसरे पार्टी में भी ऐसा ही होता है, और दोनों पार्टी के जब लीडर चुने जाते हैं तो वो फिर कंटेस्ट करते हैं एमपी बनने के लिए या कांग्रेस के मेंबर बनने के लिए। वहां अमेरिकन कांग्रेस कहा जाता है पार्लियामेंट को, तो उसके मेंबर बनने के लिए हर पार्टी अपना, दोनों पार्टी अपना एक एक कैंडिडेट पार्टी के अंदर से ही चुनेगा और वो फिर कंटेस्ट करेगा। लेकिन भारत में क्या है कि हमारे यहाँ राजनीतिक दल जो है वो खुद से तय करते हैं कि हमारे पार्टी से कौन कंटेस्ट करेगा। यहाँ पे कोई पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं होता है जैसा कि हम अमेरिका में देखते हैं। तो हियर वी डोंट फाइंड दैट विद इन द पार्टी इन इंडिया used to have contest among themselves. Generally, you will find family members or relatives or close people are given the tickets, or the talented person among the party, so they are given the tickets to contest the election. So in India, criteria is different, and in the US, criteria is different. Okay, so I hope that you have understood. तो भारत में ये स्थिति नहीं है। भारत में क्या है कि पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किनको टिकट देनी चाहिए और कौन इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, है ना। तो पहला फंक्शंस तो आप समझ गए कि पॉलिटिकल पार्टीज जनरली यूज्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन। दूसरा है कि पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, एंड जनरली वी फाइंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम। तो जितनी भी पार्टियां हैं वो लोगों के बीच क्या रखते हैं, अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स, यानी नीति और कार्यक्रम, कि हमारी पार्टी की पॉलिसी क्या है, प्रोग्राम क्या है और हम कैसे इसे जीत सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे वो रखते हैं, और फिर वोटर्स जो है वो चूज करते हैं कि भाई कौन सी पार्टी के नीतियां उनके सपोर्ट में है, उनके लायक है, उनके लिए फेवरेबल है या नहीं है। तो इस आधार पे तय करती है। और आप देखिएगा कि इन डिफरेंट पार्टीज आर हैविंग डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया, एंड दे पुट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ द वोटर्स। वोटर्स नाउ चूज थ्रू इलेक्शंस कि विच पार्टीज पॉलिसीज आर एंड प्रोग्राम्स आर फेवरेबल टू देम। तो विच एवर पार्टीज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स you will find that like most by the people, so they are getting the chance to win the election, majority seats to form the government. तो भारत में यही देखते हैं कि हम
पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जितने भी राजनीतिक दल हैं वो लोगों के समक्ष रखते हैं, लोगों के उनके विचार अच्छे लगते हैं, उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स उनके अनुकूल होता है तो उसे वोट देते हैं, और जिस पार्टी के ज्यादातर लोग पसंद करते हैं तो उस पार्टी की मेजोरिटी सीट्स आती है, वो सरकार बनाते हैं, और जिनके थोड़े कम आते हैं तो वो विरोधी दल में बैठ जाते हैं, विरोधी दल के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो दे आर जस्ट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज एज एन ऑपोजिशन पार्टी। थर्ड, you will find that it functions or characteristics of political parties to make laws is clear for a country. So all those parliamentarians, all members of legislative assemblies who are elected in the elections, so they are just making, you can say, law in the parliament, because they used to become the member of the legislative assembly or member of the parliament. The parliament or legislative assembly's duty is to make what? Laws also. तो इन लोगों का कानून बनाना भी है। तो जितने भी राजनीतिक दल से लोग कैंडिडेट्स चुने जाते हैं और वो संसदीय दल के नेता के रूप में या फिर संसद के नेता के रूप में या फिर विधानसभा के नेता के रूप में, तो वहां पर ये लेजिस्लेटिव बॉडीज है, और यहाँ वो लोग क्या करते हैं, चाहे विरोधी दल के हों या सत्तारूढ़ दल के हों, है ना, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एनी लॉ। तो दैट्स वाई this is also one of the important functions of the political parties to make laws for a country. Whether ruling party is in majority, so generally whatever bill is kept in the parliament, so it's passed with majority and sent to assent of the president and it becomes law. Generally we find it because they are in majority. तो ज्यादातर हम देखते हैं कि जो सत्तारूढ़ दल होते हैं वो मेजोरिटी में होते हैं, तो जो बिल संसद में लाया जाता है तो वो पास करा लेते हैं मेजोरिटी के बल पे, और वो फिर राष्ट्रपति के एसेंट के लिए जाते हैं और वहां से वो पास होकर के कानून बन जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कानून बनाना भी राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य है। फोर्थ, हम देखते हैं कि पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स, यानी पार्टी जो है वो सरकार बनाती है और उसे चलाती है। तो विच एवर पार्टी यू विल फाइंड दैट गेट मेजोरिटी सीट्स इन इलेक्शन, so they used to form the government, is it clear? And they used to make big policies, decisions are taken by the political executive that comes from political parties, है ना। तो executive बनाते हैं, है ना, रिक्रूट करते हैं लीडर्स को, है ना, और फिर सरकार चलाती है। यानी प्राइम जो रूलिंग पार्टी जो मेजोरिटी सीट्स लाए हैं उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर बनता है, उन्हीं के सारे मिनिस्टर्स बनते हैं, और वही फिर क्या करते हैं, एक्सिक्यूटिव के पार्ट हो जाते हैं। जब तक वो पार्लियामेंट के अंदर हैं तब तक वो लेजिस्लेटिव बॉडी के पार्ट होते हैं, और जैसे वो एक सरकार के रूप में सरकार चलाते हैं और मंत्री बनते हैं तो वो एक्सिक्यूटिव के पार्ट हो जाते हैं, है ना। तो दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से दैट कि दीज पॉलिटिकल पार्टीज रन द गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट दे यूज्ड टू रन द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, इज अ क्लियर। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन, यानी सरकार का संचालन करना। जो मेजोरिटी सीट्स लाए हैं वो सरकार का संचालन करते हैं। तीसरा हम देखते हैं, पांचवा पॉइंट सही है, रोल ऑफ ऑपोजिशन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि विरोधी दल के रूप में भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनी डेमोक्रेसी यूज टू फंक्शन प्रॉपरली वेन एवर वी फाइंड दैट कि देयर ऑपोजिशन पार्टी इज स्ट्रांग, यानी वो लोकतंत्र मजबूत है जहां पर विरोधी दल की भूमिका मजबूत होती है ना। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक विरोधी दल का भी मजबूत होना जरूरी है, नहीं तो फिर सरकार जो डिसीजंस लेगी वो समझेगी कि भाई मेरा सही है। और इस तरह से हम देखते हैं कि रोल ऑफ ऑपोजिशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, एंड वी फाइंड दैट in voicing different views and criticizing government for its failure is a clear and wrong policies। तो अपोजिशन का काम क्या है कि जब सरकार सही कार्य नहीं कर रही है या जनता के विरोध में कुछ कर रही है, जनता के समर्थन में पॉलिसीज नहीं है, तो वो उसका विरोध करती है। और अगर विरोधी दल ना हो तो सरकार सही ढंग से काम नहीं करेगी, उन्हें डर नहीं होगा। अभी क्या है कि सरकार कोई भी कदम उठाती है तो उसे मन में डर रहता है कि विरोधी दल मेरे विरोध करेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक विरोधी दल के होना लोकतंत्र की मजबूती की निशानी। तो दैट्स व्हाई द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ ऑपोजिशन पार्टी विल नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज
So this way you will find that ruling party will become what? Autocratic. Next point you will find that parties shape public opinions. Public opinion means here जनमत, यानी जनता का मत. So both the parties you will find, ruling party and opposition party, always try to shape public opinion. They used to go to the public and find out what are their views. Whether they are, suppose that ruling party is going to shape public opinion. So they just used to find out from the public whether they are satisfied with their rule or not. And opposition used to influence them, assuring them कि आई एम वर्किंग फॉर यू, नेक्स्ट इलेक्शन यू कास्ट मी वोट. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सत्तारूढ़ दल है, रूलिंग पार्टी है, वो भी जनता को प्रभावित करने की कोशिश करती है, और जो विरोधी दल है वो भी जनता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं अपनी नीतियों से, विचार से, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में उस पार्टी को वोट मिले और उस सत्ता में आए, है ना. तो ये भी दिस वे वी फाइंड दे आर जस्ट शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन. एंड एज अ प्रेशर ग्रुप्स, एज आई टोल्ड यू, pressure groups means opposition party, they are also making pressure on the government, and whenever any policies or programs we find against of the public, so these opposition party used to support them against the ruling party, and this way also they are trying to shape public opinion. Okay, next देखते हैं points हैं. Parties provide people access to government machinery and welfare scheme implemented by governments. So you will find that those parties which are as performing their duties as a ruling party, so they are doing welfare work for the public, है ना, to influence them. And you know that if the ruling party will not do anything, government will not do anything, so definitely public will feel bad, and this next election they will not get the chance, means ruling party will not get the chance. So they are doing the public welfare बाय यूजिंग गवर्नमेंट मशीनरी, यानी सरकार की जो तंत्र है उसका इस्तेमाल करके वो जनता के लिए लोक कल्याण की कार्य करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब अपोजिशन पार्टी चुप बैठती है, वो भी जनता के बीच जा करके उनका सहयोग करती है आपदा के समय में, यानी व्हेनेवर वी फाइंड नेचुरल कैलेमिटीज और एनी अदर प्रॉब्लम्स, तो दैट टाइम अपोजिशन पार्टी ऑल्सो यूज्ड टू गो एंड विजिट टू द पीपल टू डू देयर वेलफेयर वर्क. दे आर जस्ट इन्फ्लुएंसिंग. तो देखते हैं कि दोनों रूप में जो राजनीतिक दल है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, जनता के कल्याण के लिए सोचती है. रूलिंग पार्टी इसलिए सोचती है कि अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा, और अगर अपोजिशन सोचती है कि अगर हम करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में मुझे अवसर मिलेगा जीतने का. तो बोथ द वेज वी फाइंड दे आर परफॉर्मिंग ड्यूटीज. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉलिटिकल functions, political parties' functions and characteristics. Now we are going to discuss about why do we need political parties. Okay, so you will find that the political parties is very important for any democratic country. India is a vast democratic country, one of the largest political you can say that parties here we find, different parties we find, because India is a vast democratic country. तो भारत एक विशाल लोकतंत्र है, और जब विशाल लोकतंत्र है तो राजनीतिक दल का होना जरूरी है. इट इज वेरी एसेंशियल टू हैव पॉलिटिकल पार्टीज, एंड इफ देयर विल बी नो पॉलिटिकल पार्टीज तो हाउ डेमोक्रेसी विल फंक्शन. एंड दीज पॉलिटिकल पार्टीज, you know that, are playing an important role in democracy. So that's why there is necessity to have political parties. Okay, so in this what we find कि why next question जो है इससे जो बन के आता है CBSE में, वो है explain any 5 needs to have political parties in a democratic country. तो सबसे पहले देखेंगे कि डेमोक्रेटिक सेटअप जो है हमारे देश का, तो इस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज होना है. यहाँ ये अलग बात है कि हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम्स हैं, 750 से यानी 750 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं. लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक नहीं होगा तो लोकतंत्र सफल नहीं होगा, लोकतंत्र के मायने नहीं होंगे. तो राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती. वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज. So first we find every candidate in the election will be independent, so no promises could be made and the utility of the government formed will remain uncertain. यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट मतलब इंडिपेंडेंटली सब लड़ेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं रहेंगे, तो जब सभी की जीत हो जाएगी तो फिर सरकार कैसे बनेगी. और दूसरी बात है कि अगर इंडिपेंडेंट वो इलेक्शन लड़ेंगे
तो प्रोमिसेस कैसे करेंगे कि भाई मेरी सरकार आपके लिए क्या करेगी, कौन सी योजना लाएगी, कौन से प्रोग्राम्स लाएंगे, कैसे डेवलपमेंट करेंगे, वो प्रॉमिस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो अभी इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी है तो प्रॉमिस करते हैं पार्टी के आधार कि मेरी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपके लिए ये करेगी, लेकिन जब इंडिविजुअल भी वो लड़ेगी इलेक्शंस तो वो क्या प्रॉमिस करेगी, कुछ नहीं कर सकती है। और यूटिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट विल दैट फॉर्म विल रिमेन अनसर्टेन कि सरकार किसकी बनेगी, भाई पार्टी ही नहीं है। अब इंडिपेंडेंट सारे मिल करके तो सब चाहेंगे कि हम सरकार में रहें, कोई नहीं विरोधी में दल में रहना चाहेगा, तो फिर ऑपोजिशन का रोल कौन अदा करेगा। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वी फाइंड नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंट्री, यानी देश को चलाने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, कहेगा कि भाई हम तो कोई पार्टी से है नहीं, मेरी कोई सरकार ठीक से है नहीं, तो हम देश को क्यों चलाएं। तो सत्ता में आने के लिए सब व्याकुल रहेंगे लेकिन चलाने के लिए कोई उत्सुक नहीं रहेंगे और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी ओनली बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, और जिस क्षेत्र से जीत के आए हैं तो सोचते हैं कि भाई ये मैं तो यहीं से जीता हूं तो मैं इसी के लिए काम करूंगा, देश के लिए मैं नहीं करूंगा क्योंकि देश की जनता तो मुझे नहीं जानती है। तो ये स्थिति क्या होगी, वो सही नहीं है। तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल जरूरी है, तो ये स्थितियां बन सकती हैं। और तीसरा हम देखते हैं क्या हो सकता है, थर्ड वी विल फाइंड दिस कि देयर विल बी नो एजेंसी टू गैदर एंड प्रेजेंट डिफरेंट व्यूज टू द गवर्नमेंट ऑन वेरियस इशूज। तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं होगी कि कोई लोग सरकार की कोई नीतियां या प्रोग्राम जनता के बीच लेके जाए। कौन लेके जाएगा, सरकार तो पहले बनेगी ही नहीं, और सरकार अगर बन भी जाती है किसी प्रकार से तो हमेशा ऐसी सरकार तनाव में रहेगी क्योंकि दूसरे जो दल नहीं उसमें शामिल हुए तोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर जनता के बीच पॉलिसीज प्रोग्राम लेके कौन जाएगा, यह भी एक समस्या हो जाएगी। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी होना जरूरी है। नेक्स्ट, नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर सो एज टू फॉर्म अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि सबको एकजुट करें, सरकार बनाएं या फिर ऑपोजिशन में बैठें, तो ऐसा कौन करेगा, कोई तैयार नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे लोग इंडिपेंडेंट हैं। तो इसलिए भी पॉलिटिकल पार्टी होना जरूरी। जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं तो वो क्या करते हैं, एकजुट करते हैं अपने सदस्यों को, और जिसकी मेजॉरिटी होती है वो सरकार बनाते हैं, जिसकी नहीं होती ऑपोजिशन बैठती है। तो पॉलिटिकल पार्टी का तो होना जरूरी है, बिना इसके तो सरकार बनना भी मुश्किल है और विरोधी दल भी बनना मुश्किल है। तो यह भी एक कारण है। और लास्ट वी फाइंड देयर विल बी नो मैकेनिज्म टू सपोर्ट द गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज और टू जस्टिफाई और अपोज देम, यानी कोई मैकेनिज्म ही नहीं होगा जो सरकार चलाने में समर्थन करे या फिर कोई नीतियां बनाए, प्रोग्राम बनाए, कार्यक्रम बनाए या फिर सरकार का विरोध करे, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए लोकतंत्र में राजनीतिक दल का होना अति आवश्यक है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट and necessary to have political parties to run the government or to oppose the government, to make policies and programs for the people, for the society, for the nation. So that's why there is need for political parties in democracy. Okay? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे कि डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स, है ना। तो हमारे देश में 3 पार्टी सिस्टम्स है ना, 3 तरह के पार्टी सिस्टम हैं। मतलब देश में नहीं, पूरे मतलब जहां भी लोकतंत्र है या पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 3 तरह के पार्टी सिस्टम है। अब हमारा देश किस पार्टी सिस्टम में आता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंगल पार्टी सिस्टम है ना, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। तो 3 तरह के पार्टी सिस्टम है। तो सिंगल पार्टी सिस्टम मतलब होता है एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था, है ना। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लीजिए चाइना का, तो इन चाइना व्हाट वी फाइंड सिंगल पार्टी सिस्टम, वहां सिंगल पार्टी सिस्टम है। वहां कोई भी निर्णय है तो एक पार्टी लेती है, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं है क्योंकि लोकतंत्र में एक पार्टी से भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक पार्टी अगर जीती है, सरकार बनाती, तो विरोध में कौन बैठेगा, विरोधी दल कौन होगा। और बिना विरोधी दल का तो लोकतंत्र संभव नहीं है। विदाउट ऑपोजिशन पार्टी वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी। तो इन चाइना व्हाट वी फाइंड सिंगल पार्टी सिस्टम, देयर इज कम्युनिज्म, Communist Party we find there, Communist Party of China, and this Communist Party is you will find that not very responsible to the people, and you will find that there is no democracy. So single party generally we find in such country where is no democracy, okay, like China.
अब ड्वेल पार्टी सिस्टम, जिसको टू पार्टी सिस्टम भी कहते हैं, जैसे लाइक द यूएसए, द यूके, देयर वी फाइंड व्हाट, टू पार्टी सिस्टम। वहां दो पार्टियां हैं। अगर एक पार्टी जीतती है तो सरकार में आती है, वो दूसरी पार्टी विरोधी दल में बैठती है ना। तो टाइम टू टाइम कोई ना कोई पार्टी जीतती है, वहां मेजोरिटी में आती है, दूसरी पार्टी वो विरोधी दल के रूप में भूमिका निभाती है। तो टू पार्टी सिस्टम इज इंपॉर्टेंट ऑफ डेमोक्रेसी। इज इट क्लियर कि इफ वन पार्टी इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट और रनिंग द गवर्नमेंट, तो अनदर पार्टी विल सिट इन ऑपोजिशन, यू नो। So this is the we find that in democracy at least two party system should be there and we find it. तीसरा है multi party system. Two or more than parties when we find, तो those party system is known as what? Multi party system. यानी दो और दो से अधिक अगर पार्टियां एकजुट होकर के लोकतंत्र में रहती है तो उसको बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम, विच वी फाइंड इन इंडिया। ओके, India, you will find more than 750 political parties are there, and these parties, you know that, contest elections. But among them, whichever party is getting majority, so that party used to form the government. Sometimes we find single party or national party is not getting majority, so they used to take help of other political parties also and form an alliance. Like in India, if you will find the major alliance, you will find NDA, मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना, ये देखते हैं। और दूसरा जो देखते हैं यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। और तीसरा जो देखते हैं लेफ्ट फ्रंट, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टीज आते हैं। जितने भी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं इंडिया में वो सब इसी में आते हैं, लेफ्ट फ्रंट में। और एनडीए में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, जैसे बीजेपी उसके हेड हो गए और बाकी जो छोटी पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां, वो इसके ग्रुप में आ गए। तो जब सरकार नहीं बन पाती है तो अलायंस मिलकर के सरकार बनाती है। जैसे अभी आप केंद्र में देखिएगा कि एनडीए की सरकार है ना, बीजेपी रूल कर रही है, और कई राज्यों में भी एनडीए की सरकार है। और दूसरा है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो इसके जो हेड हैं वो कांग्रेस है, कांग्रेस आई, और इसके फिर जितने पार्टियां हैं इनके आसपास के इस अलायंस में शामिल है। तो कई राज्यों में यूपीए की भी सरकार है, एनडीए के पहले यूपीए की सरकार थी केंद्र में। तो वेनेवर एनी large party or national party is not getting proper majority, so they are also getting the chance to form an alliance and to form the government and run the government. So this way we find it happened and still it is happening. As you will find कि BJP is having majority seats but then also formed alliance to run at the center. Why? Because in state we find some of the states BJP is not in majority. There BJP is taking help of alliance also. To keep their support, so at the center also BJP gave them chances to be in alliance. तो चूंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी को बहुमत नहीं है, तो उन राज्यों में बीजेपी अलायंस के बल पे चलाती है सरकार। तो केंद्र में भी उनका मान रखने के लिए कि चलिए भैया आप भी शामिल हो जाइए, और उनको शामिल करके सरकार में उनका सहयोग लेकर के और सरकार रन करे। जबकि बीजेपी को मेजोरिटी सीट है, 300 प्लस है लोकसभा में, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 multi-party systems we find. First, as I taught you, this single-party system. Again, we find 2-party systems. Single-party system we find in China, but China is not a democratic country. 2-party system we find in England, I mean say the UK and the USA. And multi-party system we find in India and some other countries also, like Pakistan also you can say. So this way, why India has multi-party system? That is because here we find different social and geographical diversity. In such a large country, you will find that it is not easy to absorb by 2 or even 3 parties, because different groups we find, different linguistic groups we find, cultural groups we find, religious groups we find. So definitely on the basis of that, different parties we find, different parties representing such groups. So that's why no system is ideal for any system at the global level, if you will see. But then also we can say that that's why in India we find multi-party system. Okay? Hope you have understood this, and I have given the question on the screen, you can see. Now next topic we are going to discuss national and state party system. Is it clear? And it's very important to know about कि राष्ट्रीय दल और राजकीय दल, मतलब एक तरह से राज्य की पार्टी, और
राष्ट्र की पार्टी, है ना। राष्ट्र की पार्टी हो गई नेशनल पार्टी, और राज्य स्तर पर जो क्षेत्रीय दल जिसको कहते हैं वो है स्टेट पार्टी। तो अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि नेशनल पार्टी बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बिकम नेशनल पार्टी। एंड सेवरल टाइम्स क्वेश्चन आस्क्ड बाय सीबीएसई कि व्हाट इज नेशनल पार्टी। तो यू विल फाइंड हियर कि अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द total votes in Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. It means what? कि जिस पार्टी को 6% वोट, टोटल 6% वोट्स लोकसभा में मिलते हैं और 4 राज्यों में भी 6% वोट्स मिलते हैं, और कम से कम 2 उसके मेंबर्स जो है वो लोकसभा में होने चाहिए, है ना। तभी वो जो है 4 एटलीस्ट 4 मेंबर 4 सीट्स जो है लोकसभा में होनी चाहिए, तो वही पार्टी जो है वो बन सकती है नेशनल पार्टी। ठीक है, जैसे अभी देखिएगा बीजेपी, कांग्रेस आए, है ना, बीएसपी, तो ऐसे कई पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टी की श्रेणी में आती हैं। इसका वजह क्या है कि उसका लोकसभा में भी 6% वोट्स हैं, 4 राज्यों में भी 6% वोट्स हैं, और लोकसभा में 4 सीट्स भी हैं, मेंबर्स हैं उसके, तो इसलिए वो नेशनल पार्टी है। ऐसे इससे ज्यादा है उन लोगों के पास, लेकिन क्राइटेरिया ये फिक्स है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इज दिस। नाउ टू बिकम स्टेट पार्टी यू विल फाइंड दैट अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स as recognized, you will find as a state party, so that party becomes a state party. Such as you will find that कि at least 6% वोट चाहिए उनको। कितना परसेंट वोट चाहिए? 6% टोटल वोट का इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, राज्य स्तर पर क्षेत्रीय जो चुनाव होते हैं उसमें। और दूसरा क्या है कि कम से कम उस राज्य में उसके 2 सीट्स होने चाहिए, मतलब एमएलए के पद पर, लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स के पद पे 2 सीट्स होने चाहिए, तब वो दल क्षेत्रीय दल के रूप में, राज्य के दल के रूप में उसकी मान्यता प्राप्त होगी, है ना। तो दिस इज द डिफरेंस वी फाइंड कि दैट बिटवीन नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज वी फाइंड, है ना। तो आप, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, स्टेट पार्टी को कहते हैं। रीजनल पार्टीज ऑल्सो वी यूज्ड टू कॉल इट, एंड दिस पार्टी, रीजनल पार्टीज नीड्स 6% वोट्स टोटल वोट्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शंस एंड एटलीस्ट 2 सीट्स वुड बी देयर। कम से कम 2 सीट होना चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में उस राज्य में, तब वो उस राज्य का क्षेत्रीय दल हो जाएगा, स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि भाई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के क्या है कि वो अपनी गाइडिंग फिलॉसफी है ना। तो गाइडिंग फिलॉसफी है, उनका अपना अपना रोल है, और हम लोग देखेंगे कि वो क्या क्या पॉलिसीज लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेशनल पार्टीज जो हैं उनके गाइडिंग फिलॉसफीज क्या हैं। तो जैसा देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस आई भी कहते हैं अभी, बहुजन समाज पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी या एनसीपी या तृणमूल कांग्रेस, ये सभी नेशनल पार्टीज में आते हैं, है ना। और इनके अपने अपने गाइडिंग फिलॉसफीज हैं। इस पे भी क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, इसे जरूर आप पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, है ना, 1885 में। तो दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस विच इज नोन एज ऑल्सो एज व्हाट, कांग्रेस आई, इंदिरा कांग्रेस, है ना, इसको कहते हैं। और इसकी स्थापना अगर देखिएगा तो इंदिरा कांग्रेस की स्थापना तो बाद में हुई जब इंदिरा गांधी आई, लेकिन इसके पहले पार्टी का विभाजन हुआ। लेकिन इस पार्टी अभी तक अपने को मूल पार्टी ही मानती है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, और इसका चुनाव चिन्ह आप देखिएगा, हाथ छाप है, मतलब पाम, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अगर देखिएगा पुराने लीडर्स में तो गांधी जी भी कई मेंबर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये सब रहे थे इसके मेंबर्स, और भी लोग रहे थे, बहुत सारे हैं। लेकिन जब आजादी के बाद ये पार्टी कुछ खास व्यक्तियों के इर्द गिर्द रही, और इस पार्टी एक तरह से सेंट्रिस्ट पार्टी कहलाती है ना। और ये ना तो राइटिस्ट है या ना लेफ्टिस्ट है,
और आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन जो है इस पार्टी का, सबसे है पहला सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, है ना, और दूसरा है वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज, है ना। तो ये जो वीकर सेक्शंस है सोसाइटी में, माइनॉरिटीज हैं, उसके सपोर्ट में ये पार्टी रहती है और सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी नई आर्थिक नीति का ये समर्थन करती है ये पार्टी। दीज आर द गाइडिंग फिलॉसफीज ऑफ दिस पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप दैट यू विल लर्न इट। और दूसरा है कि दिस पार्टी यू नो दैट ऑलवेज थिंक अबाउट द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस, है ना। तो आप देखेगा नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस आई के, तो उन्होंने ही 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू विच लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो ये सब अपनाए गए, तो ऑल दीज थिंग्स वेर अडॉप्टेड दोज डेज एंड दैट लेड टू मेक अ ग्रेट चेंज इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड टुडे वी फाइंड इट्स रिजल्ट that we are having access of all those developments which initiative was taken in 1991. Okay? अब हम लोग देखते हैं बीजेपी। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और ये 1980 में ये अस्तित्व में आया था ये पार्टी, और पुराना नाम इसका भारतीय जनसंघ था, है ना। इसके कई मेंबर्स, कई संस्थापक थे, है ना। और ये गाइडिंग फिलॉसफी मतलब होता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस पार्टी का पहला उद्देश्य जो है कि इंडियन एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज को इस्टेब्लिश करना, है ना, दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट। दूसरा है कल्चरल नेशनलिज्म, है ना, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पर यह बल देती है पार्टी, हिंदुत्व पर यह बल देती है। और एक जो उद्देश्य था पहले इसका कि टू रिमूव आर्टिकल 370 विच वॉज डन, है ना। दूसरा है इनका कश्मीर समस्या को सुलझाने का, तो वो पॉलिसीज अभी भी वो कोशिश कर रही है ना, कि दिस पार्टी वांट्स अ फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि वॉट एवर पार्ट्स रिमेन विद मीन्स लेफ्ट ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, तो दोज पार्ट्स शुड बी इंटीग्रेटेड इन आवर कंट्री। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी। एंड ऑल्सो यू विल फाइंड दैट कि दिस पार्टी यूज टू सपोर्ट दैट Commonwealth program, that there should be you can say that population control and Commonwealth. So all these things are the policies of this party. These are the guiding philosophies. तो इसी तरह से कई मेजर पार्टीज हैं और इसको आप जरूर देखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी मैंने बता दिया, और भी पार्टीज के गाइडिंग फिलॉसफीज हैं, लाइक बीएसपी के, कम्युनिस्ट पार्टी के, एनसीपी के, तृणमूल कांग्रेस के, सबके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये जरूर पढ़ें, और उसमें से 2-3 आपको मिल जाएंगे। इस पर भी क्वेश्चंस आता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और गाइडिंग फिलॉसफीज ऑफ सर्टेन नेशनल पार्टीज। तो एटलीस्ट 1 or 2 you have to keep in mind. Like if you will see, the Communist Party supports socialism, secularism and democratic and opposes imperialism and communalism. तो ये इसका गाइडिंग फिलॉसफी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी, लेनिनवादी। अगर सीपीआई सिर्फ देखिएगा तो ये 1925 में आए हैं, है ना, मतलब इसी से अलग हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, एमएलबी कहते हैं, मार्क्सवादी लेनिनवादी। तो इसी से अलग हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस 1925, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये इनका गाइडिंग फिलॉसफी है। ये एक्सेप्ट क्या करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, और प्रमोट करते हैं कि दोज हु आर वर्किंग क्लास, फार्मर्स, पुअर पीजेंट्स, तो देयर कंडीशन शुड बी अपलिफ्टेड। तो ये इनका गाइडिंग फिलॉसफीज और ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस क्वेश्चन। And these questions are generally asked by CBSE. If you will focus on such questions, so definitely you will get full marks, and you will find these questions are, you just find in 2023 board exams it will come. It is very very important, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज 2 तरह के होते हैं, जरा कंफ्यूज ना करें इसमें, है ना। एक होता है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसीज, वो अगले चैप्टर में है, और एक चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो जनरली स्टूडेंट्स यूज टू कंफ्यूज इन दिस, ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। यहां जो है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के समक्ष चुनौतियां क्या है ना। तो द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सच अ वे कि दैट
discuss the challenges to political parties in India. है ना? और sometimes they are not writing India, only writing they explain the challenges to political parties, है ना? तो इसमें ध्यान देना है. तो हम लोग इसमें देखेंगे कि सबसे पहले जो चैलेंज है, चैलेंज मतलब क्या होता है कि चैलेंज इज दैट सिचुएशन फ्रॉम विच वी कैन ओवरकम. यानी चैलेंज इस तरह का चुनौती है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं. ये सब दिन के लिए नहीं रह सकता, हम इससे बाहर निकल सकते हैं. तो इसको हम लोग देखेंगे. तो पहला है लैक. फर्स्ट चैलेंज वी फाइंड लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज. तो जनरली यू विल फाइंड ऑल दोज पॉलिटिकल पार्टीज विच वी फाइंड इन इंडिया, there we find lack of what? Internal democracy. They don't have regular elections, they don't get the chance, they don't maintain the membership registers, they don't build any organizational meetings, they do not conduct internal elections regularly, as I told you, है ना. तो ये लोग रेगुलर जो है इलेक्शंस नहीं कराते हैं, कोई पार्टी मेंबरशिप का रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, ना कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग होता है रेगुलर, जिससे कि छोटे मतलब जो निचले तबके के जो लीडर्स हैं उनको ऊपर आने का मौका मिले, है ना. तो जो टॉप लीडर्स रहते हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं, है ना. और इसके कारण क्या होता है कि छोटे जो तबके के या डाउन मतलब ये कह सकते हैं लेवल पे जो बॉटम लेवल पे जो लीडर्स होते हैं उनको ऊपर आने का मौका नहीं मिलता है ना. और इसके कारण क्या होता है, पार्टी में कभी टूट भी हो जाती है ना. तो दैट्स वाई दिस इज वन ऑफ द चैलेंज विच वी फाइंड among the political parties, that there is lack of internal democracy. So that's why there we don't find regular elections, regular maintenance of membership in registers, regular organizational meetings. We don't find it. There is a lack, and that's why we can say there is a lack of internal democracy. Next हम लोग देखते हैं जो चैलेंज है. The second challenge of dynastic succession is related to the you will find foremost everywhere we find all the political parties we find we find dynastic succession. So if you will see any political party, you will find parties, family, whichever party it is, and if the family is dominating in such party, so family members only you will find that you get the chance in political party. If you will see Indian National Congress, so you will find first Jawaharlal Nehru, after that Indira Gandhi, after that Rajiv Gandhi, after that Sonia Gandhi, after that Rahul Gandhi. So this is what? This is dynastic succession. All of them are getting the chance, family members are getting the chance. So it is not fair, no? The party members only will get the chance. So mostly the political parties you will find that dynastic succession is there. Other people are not getting the chance. Recently, if you will see the elections held, so that is also what? The other member got the chance to become the president of Congress. But that will be the remote control. Is it clear? The party members means party you will find Sonia Gandhi or Rahul Gandhi used to get the chance to remote them, controlling them with through remote. तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तराधिकारी का कोई खास नियम नहीं है. मतलब कौन पार्टी में दूसरे लोगों का मौका मिलेगा, जो परिवार के लोग हैं उन्हीं को मौका मिलता है, वही उत्तराधिकारी बनते हैं. तो लैक ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, है ना. डायनेस्टिक सक्सेशन जो है वो मतलब एक तरह का चैलेंज है यहाँ पर. जो उत्तराधिकारी हैं परिवार के लोग बनते हैं, दूसरे लोगों को परिवार से हट के मौका नहीं मिलता है. एंड यू हैव हर्ड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेवरल टाइम्स टोल्ड कि देयर शुड बी व्हाट, वी शुड अवॉइड दिस डायनेस्टिक सक्सेशन, है ना. परिवारवाद, पार्टी में परिवारवाद नहीं होना चाहिए. आप देखिएगा आरजेडी में मिस्टर लालू प्रसाद यादव, आफ्टर राबड़ी देवी, आफ्टर तेजस्वी यादव, तो हु इज डोमिनेटिंग द पार्टी? सपा, इफ यू विल सी इन उत्तर प्रदेश, तो दिस वे यू विल फाइंड मुलायम सिंह यादव, आफ्टर दैट अखिलेश यादव, and all the family members. It's completely family party. So this is the problem we find. This is one of the challenge we find in political parties. Third, we find this money and muscle power. This is one of the challenge. So mostly growing role we find of money and muscle power in all the political parties. ज़्यादातर political parties में आप देखिएगा कि money और muscle power कितना, criminal activities होते हैं, पैसे वाले लोग राजनीति में आते हैं और वही सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, है ना. और इस तरह से क्या होता है कि लोगों के मन में ये रहता है कि भाई योग्य व्यक्ति नहीं आ पाते हैं, जिनके पास मनी है, जिनके पास मसल पावर है. मतलब मसल पावर मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं, मतलब कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज से कनेक्शंस हैं वो लोग चले आते हैं. तो वैसे लोग अगर सत्ता में आएंगे, वैसे लोग जनता पर शासन करेंगे तो देश का क्या हाल होगा. तो इसलिए this is one of the challenge कि there should not be money and muscle power. And generally we find all the political parties are having money and muscle power, criminal connections. They are winning the elections and they are, that, ruling on us. So this is one of the challenge.
And last we find that there is no meaningful choice in front of the voters. Why? Because same type of people we find in all the parties. And whenever they are contesting elections, the voters used to find that whom to cast vote, because all of them are having the same characteristics. So that's why we find there is no meaningful choice. तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर पढ़िएगा. लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि हाउ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कैसे सुधार लाया जा सकता है. तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफेक्शन लॉ है ना. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, यानी एक लॉ लाया गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं वो चेंज नहीं करेंगे अपने पार्टी को. एंड इफ दे विश टू चेंज तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू रिजाइन, है ना. एंड दिस इज नोन एज व्हाट, डिफेक्शन. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफेक्शन. अगर changing party allegiance from the party on which a person get elected to legislative body to a different party. This is defection, and defection law लाया गया कि if anyone wish to change, तो first of all wish to change party, so they have to resign from previous party and contest the election to win the election again to become the member. तो इस डर से लोग अब नहीं करते हैं, है ना, कि अगर हम चेंज करेंगे पार्टी तो मेरी मेंबरशिप चली जाएगी, हमको रिजाइन करना होगा और नेक्स्ट इलेक्शन में हमको वोट देगी जनता की नहीं देगी, तो डर है. तो इस तरह सुधार लाए. लेकिन एक कंडीशन है कि अगर 2/3 मेजोरिटी ऑफ सच मेंबर्स विल चेंज द पार्टी, देन डिफेक्शन लॉ विल नॉट फंक्शन देयर. अगर 2/3 अगर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स अगर चेंज कर लेते हैं, दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो डिफेक्शन का लॉ नहीं. जैसे आप शिवसेना में देखिएगा, महाराष्ट्र में रिसेंटली इट हैपेंड, है ना. तो कई राज्यों में ऐसा हुआ कि पूरा पार्टी का 2/3 मेजोरिटी दूसरे पार्टी में चला गया, तो डिफेक्शन का लॉ नहीं हुआ, मतलब रिजाइन नहीं मारना पड़ा. तो ये सिंगल के लिए है, 2-3 लोगों के लिए, 2/3 से नीचे वाले लोगों के लिए. नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है ना, एफिडेविट, कि इफ एनी वन वॉन्ट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, तो बिफोर नॉमिनेशन मीन्स ड्यूरिंग द नॉमिनेशन दे हैव टू गिव एफिडेविट. एफिडेविट मीन्स सॉर्न ओथ टेकन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. If anyone wants to contest the election, they have to give all the reports related to wealth, property, criminal connections and punishment given by the court. यानी सारे डॉक्यूमेंट्स देना है कि अगर आपको देखा जाए आपके पास संपत्ति कितनी है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके प्रॉपर्टीज फैमिली के पास कितना है ना, वो सही होना चाहिए, क्रिमिनल कनेक्शंस तो नहीं है, सजा याफ्ता तो नहीं है आप. और ये सारी जानकारियां जब वो देगा तो ये एफिडेविट के माध्यम से दिया, शपथ पत्र कहते हैं, यानी कोर्ट के समक्ष वो जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो शपथ देते हैं. और कोई भी गलती पाई जाएगी तो बाद में भी उसकी कैंडिडेचर समाप्त हो जाएगी, यानी एमएलए एमपी के पद खत्म हो जाएंगे, उनको पनिशमेंट मिलेगा. तो ये शपथ लेते हैं. तो इससे भी कमी आई है कि दोज हु आर हैविंग क्रिमिनल कनेक्शन, दोज हु आर पनिश्ड बाय द कोर्ट, दे आर नॉट कंटेस्टिंग द इलेक्शन. तो दिस लॉ ऑल्सो मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन दिस. और नेक्स्ट है कि इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग नेसेसरी for political parties to hold their organizational elections and file their income tax return also. And whichever party is there, so what are the organizational elections, there, and how much, what are the source of income of the party, they have to give the information to the election commission. यानी पार्टी का इनकम कहाँ से होता है, पार्टी खर्च कहाँ से करती है, पार्टी का आय का स्रोत क्या है, चंदा से आता है या किससे आता है, तो वो सारे आप स्रोत बताइए इलेक्शन कमीशन. और अगर गलत तरीके से पैसा आ रहा है, कहीं से वसूला जा रहा है, किसी बड़े उद्योगपति से लिया जा रहा है, तो इस तरह से ये जानकारी अगर पता चल जाएगी तो फिर उस पार्टी के लिए भी मुसीबत हो जाएगी. इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे लॉ हैं जो उन पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा. तो ये सारे भी इनकम टैक्स रिटर्न उनको फाइल करना है, सोर्स ऑफ इनकम बताना है, आय का स्रोत बताना है. तो इस तरह से ये सारी जानकारी देना है. तो दीज आर द वेज थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड, एंड टुडे वी फाइंड इट इज रिफॉर्म्ड ऑल्सो. Okay, so I hope that you have understood all the important questions of this chapter. It will be very helpful for the forthcoming board exams. Is that clear? And if such questions which I am giving on the screen, you just jot down, and it will be very helpful for you in this board exams. You will get full marks, and this way I will be with you with the next chapter, important chapters, and you just watch my video and you will find that you subscribe, share and like my video.